Good evening and very warm welcome to the visualization session today. I'm your teacher or a trainer. Basically, I will be taking you to the visualization class, meditation class. And what we will be doing is we'll be doing mindful visualization today. So there is a little difference between mindful visualization and this is another form of meditation that we're talking about. But I wanted because there are a lot of enrollment for today's session. So, and some people did join in 5-10 minutes before and dropped. So what I want is we'll wait for another 5 minutes before we proceed with the session. All right. So in the meanwhile, I see some who are already connected to me and a few people who are joining this session for the first time. So I will request all of you all to be a little more patient for another 5 minutes and then we can start off with the session since I don't want other people to miss out, and we'll be doing certain practice where coming in between and joining would be difficult. So it would be better if I take the entire team, entire herd together throughout the session. All right. So, and there's one request. In the end, you can ask your question and share your imageries. You can share your imageries, your experience in the end with me. I can decode the messages. I can decode the imageries for you. But in between, I would just request you people to keep taking the experience, even if you get disturbed a little. Okay, if you think that you're not getting connected properly, there are disturbances. So just try to meditate on the voice. It is totally a guided session. So just try to meditate on the voice. And again, जब thought आते भी हैं, if in case you are, listening to certain voices in your mind or your mind is going here and there, then also again थ्रेड पकड़ना है और वापस आ जाना है. जो लोग तो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो गाइडेड मेडिटेशन बहुत इजी है, वो लोग पहले भी सेशंस में कर चुके हैं. पर जो लोग के लिए फर्स्ट टाइम है उन लोगों के लिए देयर इज अ टिप. अगर आप थोड़ा सा पानी अपने पास रखें और मैं डीप ब्रीदिंग करवाऊंगी, उससे काफी क्लटर शेड ऑफ हो जाता है. Before we go into the actual mindful visualization class, we will do some amount of breathing also. So another tip would be कि अपना दरवाजा बंद रखें, अपने फोन को साइलेंट पे रखें. All right? And घर पे आसपास जो भी हैं, या तो वो साथ में बैठ जाएं या फिर दरवाजा थोड़ा साइड में, थोड़ी सी प्राइवेसी पे आप आ जाएं, so that the session goes undisturbed. Because sometime meditation session या आप visualization कर रहे हो, आप किसी concentration या focus बनाने की कोशिश कर रहे हो और suddenly there is a sound, you would feel disturbed and you would, अगर आप कहीं travel करके थोड़ा सा trance की तरफ जा रहे हैं तो entire experience will be like हमने पलक झपका ली and the thing is lost. Okay, so I would really not want you people to lose out on the experience. I would request all of you all to keep your, mics on the silent mode. That's a request. Keep your mics on the silent mode so that when I am talking, there is absolutely silence. You are able to just move with the guidance of the teacher. All right. So with this, so now we have people coming in. I will quickly give you a small introduction. I am your trainer today. My name is Usha Mahesh Shankar, and I'm a Reiki master teacher, a crystal therapist, and a mindful meditation teacher. Now, coming to the topic today, mindful meditation and visualization. मेडिटेशन से विजुअलाइजेशन, माइंडफुलनेस का क्या नाता है या कैसे फर्क है? बहुत ही सिंपल है. आज की टेक्निक क्योंकि ज्यादा करने के लिए है, प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैंने कोई पीपीटी नहीं रखी. इट इज टोटली एन एक्सपीरियंस विच यू आर गोइंग टू टेक. सो
सिंपल डेफिनेशन, जब तक कि और थोड़े से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, माइंडफुलनेस इज यू आर गोइंग आउट ऑफ योर सिस्टम, मेकिंग योर माइंड एक्सपेंसिव। अपने दिमाग के क्लटर को शेड करते हुए हम अपनी माइंड की एक्सपेंसिवनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। ऑलराइट, एंड जैसे जैसे साउंड यानी टीचर की जो आवाज होती है वो एक दिशा, एक गोल की तरफ हम सबको लेके जाती है। तो क्विकली इफ वी कुड गैदर वन गोल of healing in the mind, because this session is going to repair some part of you. It is going to repair some part of you. So I would request that अपना goal पहले से set कर लें. Be it health, be it a hobby which you're going to take up, be it harmony, be it abundance, be it business goal. जो भी गोल आप पकड़ रहे हैं आज के सेशन के लिए, उसको आप अपने माइंड में, मैं बोलूंगी, अपने गोल को आप सेट करें। अब अपने गोल को याद करें। तो आपने अपने गोल पर पहुंचना है, अपने गोल को सोचना है और जस्ट अपने मन में उसे रख लेना है। सो दैट मीन्स दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक। गोल कुछ भी हो, उसको सिर्फ स्थिर रखना है फॉर अ सेकेंड, look at it and then let it go. So now meditation और mindfulness में क्या difference है? Mindfulness is basically when we become expansive. Meditation is just the experience of the inner sanctum. हम अपने inner sanctum में जाते हैं और who am I के जोन में बिना किसी इमोशन के बस जाते हैं। उस एक्सपीरियंस को हम मेडिटेशन का नाम देते हैं। जब हम खुद को खोजते हैं वो है मेडिटेशन। माइंडफुलनेस इज जब हम इस प्रेजेंट मोमेंट में, अगर मैं साउंड यानी गाइडेंस के साथ करा रही हूं तो उस साउंड में आप बस जाएंगे, उसको हम माइंडफुलनेस कहेंगे। आपका माइंड कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ मेरी साउंड के साथ कनेक्टेड रहेगा। मैंने बोला नींबू या लेमन, तो बेसिकली आपके मुंह में वो खट्टा सा स्वाद आना चाहिए, उसको बोलेंगे हम माइंडफुलनेस। या नाइफ, तो दैट धार ऑफ द नाइफ शुड स्पार्कलिंग कम इनटू योर माइंड, दैट इज माइंडफुलनेस। इस मिनट में हूं, इसके बाहर मैं कुछ नहीं देख रही हूं। सो नाउ दिस इज द क्लियर डेफिनेशन। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? सो सबसे पहले we declutter the mind. तो in order to declutter the mind, very simple technique, हम पेट से सांस लेंगे। पेट से सांस लेने का मतलब है आप जहां बैठे हैं प्लीज मेक योरसेल्फ वेरी कंफर्टेबल। मैं क्योंकि आपको गाइड करने वाली हूँ, मैं चेयर पे बैठी हूँ, आप लोग कुशन ले लें, आलती पलती मार लें। एक नॉर्मल अगर काउच पे बैठे हैं तो शॉल ले लें, कवर योरसेल्फ अप अ लिटिल। थोड़ी ठंड लग सकती है सेशन के दौरान। प्लीज मेक योरसेल्फ वेरी वार्म एंड वेरी कंफर्टेबल। आधे पौने घंटे में यू शुड नॉट फील डिस्कम्फर्ट, अदरवाइज द एक्सपीरियंस इज ऑल गोइंग टू गेट लॉस्ट। तो अपने कंफर्ट पर 2 मिनट ध्यान दें। कुशन नी के नीचे रखना है, लेट के करना है, जिस तरह आप चाहें आप इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाउ क्विकली कमिंग बैक टू द ब्रीदिंग टेक्निक, इसमें हम सबसे पहले ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, वो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग मतलब हम अपनी लंग्स को खोलेंगे, पेट से सांस लेंगे, यानी जब हम सांस ले रहे हैं तो अपने पेट को फुलाएंगे, चेस्ट को नहीं। चेस्ट ऑटोमेटिकली एज अ रिदम फूलेगी। तो हमने जब फर्स्ट सांस लेनी है, प्लीज लुक एट द डेमोन्स्ट्रेशन। हाथ हमेशा रिसेप्टिव मुद्रा में, इन दिस रिसेप्टिव मुद्रा, रिसेप्टिव पोजिशन, आकाश की ओर अपने घुटनों पर आलती पलती मारें या लेट जाएं और बगल में इसे छोड़ दें, हाथों को बगल में छोड़ दें। उसके बाद आपने एक गहरी सांस लेनी है, और लेनी कैसी है, प्लीज लुक एट द डेमोन्स्ट्रेशन। 1 2 3, आपका स्टमक पूरा बाहर आना चाहिए। इट शुड ब्लोट एंड कम आउट, लेट द टमी फिल विद द ब्रेथ। ऑक्सीजनेटेड करना है बॉडी को, तो स्टमक इज ऑल कमिंग आउट 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 आउट। होल्ड इट
for just a split of a second. Oxygen is going to my mind, filling my brain. It's right at the top of my crown. बिल्कुल पैरों की तरफ ध्यान, पेट पिचक जाएगा, निचला हिस्सा सिकुड़ जाएगा. ये एक ब्रेथ है. हम ऐसी 4 ब्रेथ लेंगे. थोड़ा सर हल्का लगेगा, but I'll ground you people, so nothing is going to go haywire. I will look after the protection of the complete crowd that I'm holding today. So you just do not bother about the grounding part. Just concentrate on the counting that I'm going to do. 1, 2, हम यहाँ पेट फुला रहे हैं. 3, 4, 5 मेरे बोलते ही ऑक्सीजन सर पे जाएगी. होल्ड, फिर हम रोकेंगे और जब मैं बोलूंगी रिलीज तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको अपने बटक्स यानी अपने एनल एरिया के साथ फ्लोर का वजन, ग्राउंडिंग आपको महसूस होनी चाहिए. पेट सुकड़ जाना चाहिए. ऐसे पूरा पेट खाली. तो इस तरह से हम बॉडी को ऑक्सीजनेट करेंगे. So now breath number 1. Please all of you all be prepared. Take a deep breath. 1, 2, 3, 4, 5. You'll have to do it with me. Hold the breath. Release. गले में साउंड आनी चाहिए, पेट खाली होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Settle down. अपना ध्यान अपने अंगूठे की तरफ, पैर के अंगूठे की तरफ. अब मैं सिर्फ काउंटिंग बोलूंगी. इस एक्सपीरियंस में आपको टोटली घुस जाना है. टेक अ डीप ब्रेथ. 1, 2, 3, 4, 5. Hold it there. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feel the bottom. Feel the ground. One more breath. If any thought is coming to your mind, look at it and let it go. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Get grounded. अपना goal, health, harmony, abundance, business, family, relationship. Now is the time to recall, look at your goal, feel the outcome of the goal. Take a deep breath. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Get grounded. इसके साथ ही गोल को जाने दें, रिलीज कर दें. Everybody's attention, center of the chest. अपने चेस्ट के ठीक बीचों बीच, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे ध्यान लगाएंगे. कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे. सेंटर ऑफ द चेस्ट पे ध्यान लगाएंगे. Just feel the vibration or the change of energy on the center of the chest. Opening of the heart chakra
I am receptive to the cosmic energy. I dedicate myself to the group energy. अब बहुत धीरे से अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे पे, हम सब अपनी अपनी बॉडी को महसूस करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे पे ध्यान, थोड़ा सा ऊपर नी पे ध्यान। Look at your knee. Any stiffness, any pain, any old wound you would know now. थोड़ा सा ऊपर thigh, hip, lower back, left side. Move up a little, left side of the chest. अपनी lungs पे ध्यान दें। Left shoulder, left hand. Look at your fingers. आपकी गर्दन के पीछे subtle energy, सिर के पीछे, सिर के ठीक ऊपर ध्यान दें। अब हम फ्रंट में आ रहे हैं, अपनी आंखों के बिल्कुल बीचों बीच। Feel the energy on your eyes. On the right shoulder, right hand, and the fingers. Right side chest, low back, right side hip, thigh, right knee, leg. Just notice your right ankle. और फिर अपना राइट अंगूठा। अब अपने पैरों के तलवे पे ध्यान दें। Gentle energy, very soft. Affirmation here. I'm grounded, centered, and balanced. अब यहाँ पर
अपने आप को एक गार्डन में पाएं, विजुअलाइज करें आप एक गार्डन में हैं, बेंच है, और बेंच पर आप बैठे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, बेंच को देख पाएंगे, आपके सामने एक ट्री है और बहुत हरियाली है, आप उसे देख पा रहे हैं। नोटिस द ब्रांचेस, पेड़ का तना, ब्रांचेस, उसकी पत्तियां, द कलर ऑफ द ग्रीन। आप अपना ट्री खुद बना रहे हैं, तो कितना ग्रीन यू कैन इमेजिन। पेड़ कितना बड़ा हो, सिर उठा के देखें कहाँ तक जाता है। इसकी जड़ों पर ध्यान दें, आसपास ध्यान दें। डू यू सी अ वाटर बॉडी नियर बाय? थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करें। It's very green and you're enjoying the journey. Notice the time of the day. Is it morning? It is afternoon? Or is it evening? सूरज है, हवा चल रही है। Just keep noticing. मेरी आवाज के अलावा अगर कोई इमेज आपको दिखती है, उस इमेज पे आप ध्यान दें। कोई प्रेशर नहीं, उस इमेज पे ध्यान दें। हम आगे चल रहे हैं। There is a water body. गहरा, बड़ा, जिस भी तरह का वाटर बॉडी आपको दिख रहा हो। Check. Do you want to take a dip in the water? Or are you scared? What do you want to do? Those who want to take a dip, go ahead. Take a splash. Check the temperature of the water. Those who want to sit beside the water body, enjoy the trip. पानी के ripples, पानी से छू के आने वाली हवा पे ध्यान दें। थोड़ा सा आगे हम गए, यहां से निकले, थोड़ा सा आगे। There is a road, और रोड के दोनों तरफ गहरे पीले फूल। देखिए, खेत हैं क्या? आपके आसपास किस चीज के खेत हैं? किसी को पीले फूल दिखे, किसी को कोई और खेत भी दिख रहा है शायद। थोड़ा ध्यान दें। Keep on moving and seeing. Check the sentiment. Do you like it?
Have you been there before? अपने आसपास नजर उठा के देखें, पहाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, आसमान कैसा है? थोड़ा आगे चलें। There is a road that we can see. We are taking the road. It's taking you to a village, probably. Any memory, any face, temple, anything which you see now, उस पे ध्यान दें। You're enjoying the trip, हवा, आसपास का environment. You're really liking it. Feel the happiness, the comfort, and the calmness around. As you move around in the village, check what is happening. चारपाई पे कोई बैठा है? सामने पेड़ है? कोई बैठा है? Look at the images and the sound and the feeling. Are there any animals around you? विलेज का चक्कर लगाएं, बाहर की तरफ निकलें, उसी रोड पे वापस खड़े पाएंगे जहां से विलेज में एंटर हुए थे। हम वापस आ रहे हैं। Is there a bus nearby? Or you have a cycle? Make a choice. How do you want to travel? How do you feel coming back? Do you think somebody is with you? अपने आसपास देखें। Has somebody joined you? कोई बच्चा है क्या? So we keep walking. We come back to the park again. Same park, same bench है क्या?
any image, any message which comes now to you, उस पे ध्यान दें. Center of your chest. Keep the focus there. How do you feel now? बहुत धीरे से एक बार फिर आपका ध्यान आपके पैर के अंगूठों पे, तलवे पे, सटली अपने नीचे के ग्राउंड को महसूस करें. अपनी बॉडी को महसूस करें. मेरे 3 गिनते ही हम बहुत धीरे से आसपास के एनवायरनमेंट और साउंड की तरफ अलर्ट हो जाएंगे. 1, 2, 3, and we are back into the room. We notice the breath and the body, and we'll slowly open our eyes. Take a deep breath and exhale. अब वो लोग पहले बोलें, one by one. Anybody who's feeling a little dizzy, lightheaded, can raise a hand and, talk to me. सपना. Yes, सपना. मैम एक तो बीच में नींद आ गई थी. मतलब ऐसे एकदम से ना गर्दन झटकी तो एकदम से लगा कि हाँ कहीं बाहर आ गई, मतलब ऐसे कुछ. Okay. आपके साथ चल रही थी पार्क तक, पेड़ पौधा वो बनाया, सब कुछ किया. फिर लास्ट में जब आपने बोला बच्चा कोई है तो एकदम बच्चा, और अब लेकिन अब हल्का सा मेरे को सिर भारी लग रहा है. Okay. So ठीक है, we'll take a deep breath. All of you all take a deep breath. और इस बार मुंह से आपने सांस को छोड़ना है. एक गहरी सांस अंदर, बाहर, अंदर and बाहर. And as we progress, as we talk to each other, okay, ये जो head की dizziness है, it will subtly settle down because इतना ज्यादा ऑक्सीजन हम बॉडी में जनरेट करते हैं इस एक्सरसाइज में, और हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में, खासतौर पे ब्रेन और लंग्स में हम फिल कर रहे हैं ऑक्सीजन. तो यू डू फील अ लिटिल डिजी एट टाइम्स, बट जैसे ही सेशन खत्म होगा एंड वी विल डू द ग्राउंडिंग एक्सरसाइज. आई हैव ऑलरेडी डन इट एंड आई ब्रॉट यू पीपल बैक. बट अगर बीच में फिर भी किसी को लगे तो सेपरेटली आप मुझसे सेशन में बने रहें. I will ground that person and it will be fine. So now one by one, we people can understand the experience, or if there is any particular water body, आपने समंदर देखा, या आपने लेक देखा, या आपने उसमें डुबकी लगाई, या कोई अलग से कोई इमेज आपने देखी, because जो पानी हम देख रहे हैं, if it is turbulent water, ओके, तो जिंदगी में हमारे थोड़ी उथल पुथल है. रिलेशनशिप्स में वाटर डिपिक्ट्स अ लॉट नंबर ऑफ टाइम्स डिस्टर्बेंस. अगर टर्ब्यूलेंट है, मडी है,
तो disturbance in life, disturbance in relationship, it may depict that. A very calm, comfortable water body, I am relaxed, I am enjoying. That means that I'm sailing through, and that is my desire. That is my deep desire to sail through. Seeing a jungle, seeing greenery around me is my connect with the natural environment. So I'm decoding it for all of you all. इससे separate जिसने देखा हो वो फिर मुझसे मतलब हम सेशन में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. So green color of the tree, a deep rooted tree means I'm trying to place center. जब हम थोड़े से भी disbalance होते हैं because of the uthal-puthal around our lives, so this is the moment when we say ground yourself and we make an affirmation and I ask you to visualize a tree. जितना बड़ा, जितना ऊंचा और जितनी गहरे जड़ें हम देख रहे हैं, that is the actually deep-seated desire which manifest during meditation. और practitioner यही कराना चाहता है कि centering और balance subconsciously इस तरह से आपकी हो जाती है. So that means we are centering and balancing the root chakra. So it's basically grounding you, making you a very, very balanced and a calm and a centered human being. इसलिए एक बड़े वृक्ष की कल्पना करने के लिए हम बोलते हैं हरा रंग और सेंटर ऑफ द चेस्ट पे फोकस बार बार, ताकि जो कनेक्ट, जो दिमाग हमारा यहाँ वहां जा रहा है वो वापस सेंटर ऑफ द चेस्ट इज माय सेंटर पॉइंट, मेरे ध्यान का पॉइंट, मेरे कनेक्ट विद द नेचर का पॉइंट, मेरे कनेक्ट विद द कॉस्मिक एनर्जी का पॉइंट, और मेरी अपनी बॉडी और आध्यात्म के बीच का जो सेंटर है वो भी हमारे हार्ट सेंटर से गुजरता है. मेरी इम्यूनिटी, मेरी हेल्थ, मेरी हार्मनी, मेरी अबंडेंस, मेरी प्रॉस्पेरिटी सब मेरे हार्ट चक्र से गवर्न्ड है. इसलिए फोकस प्राइमरीली गोज टू रूट एंड कम्स बैक टू हार्ट अगेन एंड अगेन. इसलिए हरा रंग हम बार बार दिखाते हैं ताकि चाहे हेल्थ हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो या हार्मनी हो, तो गोल you should be able to fulfill the goal, experience the goal. All right. पीला रंग और पीले रंग के फूल मैंने इसलिए कहा because solar plexus balancing यानी wealth. All right. हमारी manifestation of wealth, accumulation of wealth, हमारी memories, हमारी power, तो उसका सेंटर है मणिपुर चक्र which is solar plexus. तो यानी पीला और पीला रंग हम कितना विजुअलाइज कर पाए, या पीले की जगह हम संतरी देख पा रहे थे, दैट इज सोलर हमारा सैक्रल चक्र. तो कई बार पीले और संतरी के बीच में कलर्स मिक्स होते हैं, तो दैट मींस ये दोनों आपस में काफी क्लोजली कनेक्टेड हैं. तो आपके सैक्रल और सोलर चक्रास की बैलेंसिंग इन कलर्स को जब हम कॉल अपॉन करते हैं और आप उन्हें देख पाते हैं, तो इससे उनकी जो बैलेंसिंग है वो वहां होगी. और पीले रंग के फूल का मतलब है आपकी सोलर प्लेक्सिस की पर्सनल पावर की बैलेंसिंग हो रही है, एंड वी आर कॉलिंग अपॉन दैट कलर टू स्ट्रेंथन एंड क्लेंस एंड चार्ज द सोलर प्लेक्सिस. ऑलराइट. और इसको दिखाने का मतलब है कि हम अगर अबंडेंस की तरफ जाना चाहते हैं, ओके, इफ माय गोल इज टू प्रॉस्पर, तो ये इसकी क्लेंजिंग ऑटोमेटिकली इस कलर की विजुअलाइजेशन से, एफर्मेशन से होती है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, वी डिड नॉट गो टू थ्रोट, वी डिड नॉट गो टू क्राउन, बट वी डिड गो टू थर्ड आई. सो अगर थर्ड आई पे सटल एनर्जी फील हुई हो या थर्ड आई पे सटल एनर्जी आपको फ्लोट करती हुई लगी हो, so that means you did make a connect with the third eye. यानी मेरी supernatural, my power to look beyond, to connect with the cosmic energy, and मेरे सपनों से या मेरे मैसेज डाउनलोड से interpretation is what is meant by third eye connect. All right. तो आज के सेशन में we did, because some of you did go down to that lane where they met certain past memories, certain past faces, certain past life. Few went to past life also, जहां से वो किसी को अपने साथ लाए, because it's a group session, तो multiple images floating around, और कई बार हम अपने साथ साथ किसी और की भी ग्रुप की इमेज को भी देख पाते हैं.
तो ये ग्रुप एनर्जी का बेनिफिट भी है और इसका फायदा भी होता है कि जो सामने वाला देख पा रहा है, दोज इमेजेस आल्सो फ्लोटिंगली कम टू यू. तो दैट इज द पावर ऑफ ग्रुप मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन. इसके बियॉन्ड अगर किसी ने कुछ स्पेसिफिक देखा हो, आई गेस समबडी डिड सी एन एनिमल आल्सो. तो एनिमल्स के सबके जो आपने देखा हो, लायन देखा हो, काव देखी हो, या कोई और विलेज में आपने चीज देखी हो, तो इन सब की अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है, या आपने टोटली कुछ अलग देखा हो. इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर द एक्सपीरियंस, यू आर मोस्ट वेलकम. और इफ एनीबडी was just not able to connect, then I would like to know that also, that there was a lot of disturbance and I was feeling that मैं connect हो रही हूँ, वापस जा रही हूँ, या हो रहा हूँ और disturb हो रहा हूँ. So that experience may have been also noticed. So if anybody wants to share, chat box में लिख सकते हैं या आप बात कर सकते हैं, no problem. Anybody has any experience to share? योगेश जी, रसिका, everybody is being very quiet and yeah. Okay, sleeping means, so sleeping is a very natural process, Sapna, and why you sleep during meditation, and ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सच में सो गए, तो उसमें कुछ ये समझने का नहीं है कि मैं सो गई तो मैंने अपना एक्सपीरियंस मिस कर दिया. It's your body's repair mechanism basically. जी, इट्स योर बॉडीज रिपेयर मैकेनिज्म. तो जब आप डीप सेंस ऑफ मेडिटेशन में जाते हैं और आपकी बॉडी एकदम काम और रेस्टफुल हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सच में ही सो गए हैं, बट सबकॉन्शियसली यू विल बी कनेक्टेड टू माय वॉइस. इसीलिए जब मैंने बोला जर्नी वापस शुरू करें, तो आपको लगा कि अच्छा अभी चलने का टाइम आ गया, बिकॉज यू वेंट इनटू दैट डीप पीसफुल स्लीप एंड नाउ इज योर टीचर टेलिंग यू टू कम बैक 1 2 3. सो आप थोड़ा सा झटके से, इसलिए आपको लगा कि गर्दन में थोड़ा झटका सा है, बिकॉज उसके बाद आप जागने की पोजीशन में और अवेयर की पोजीशन में आ गए. तरुण जी इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन. हाँ जी सर, बोलें. तरुण सर, आप अपने माइक्स को अभी ऑन कर सकते हैं. ओके, सो हाँ जी सर. हाँ, सॉरी मेरे को ऑन करना नहीं आ रहा था. नो 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 प्रॉब्लम. हाँ जी बोलिए. हाँ, मैम जब आपने विजुलाइज करने को बोला, तो आई डोंट नो, जस्ट यस्टरडे ओनली मैं पार्क में गया था और एग्जैक्टली वही बेंच और वही ट्री मेरे को दिखाई दिया. मेरे को पता नहीं, आपने ये बोला तो जैसे जैसे आप बोलते जा रहे थे एग्जैक्टली वही चीजें मैं देखता जा रहा था. वो और एक्चुअली में वो ट्री काफी बड़ा था और काफी रूट्स उसकी बड़ी थी. वाटर बॉडी नेचुरली पार्क में कोई नहीं थी, तो फिर मेरे को थोड़ा सा समझ में आया कि आप हमें इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं. तो फिर हमने विजुलाइज किया मैंने, तो वाटर बॉडी पहले थोड़ी छोटी दिखाई दी, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब थोड़ी बड़ी हो गई. और फिर जैसे आपने कहा स्प्लैश लेना है या कुछ, तो मेरा मन किया कि बस सिंपली बैठा रहूं वहाँ पे. ओके, उसके बाद आप विलेज पे लेके गए, तो विलेज की उसने मेरे को येलो कलर के दोनों तरफ इसके क्या होता है सनफ्लावर्स ये दिखाई दिए, और बिल्कुल क्लियर और एकदम ब्लू स्काई था, और एकदम ब्लू स्काई था. और उसके अंदर मतलब बहुत स्मॉल लिटिल वाइट क्लाउड्स थे. बड़ा पीसफुल एक्सपीरियंस था, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी सनशाइन थी. और जो फिर आपने बोला विलेज के अंदर जाइए, तो विलेज के अंदर जैसे एक टेम्पल था और कुछ हट्स थी, प्लस कुछ गोट्स दिखाई दी मेरे को, और एक आध काऊ थी, कुछ एक दो बच्चे खेल रहे थे, और एक ट्री था. फिर वहां पर जैसे एक चबूतरा सा होता है विलेज में, पंचायत टाइप कुछ होता होगा, वहां 4-5 बूढ़े लोग बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे, समथिंग लाइक दैट. तो ये सब देखा. फिर एक देख आपने बोला कि आपके साथ कोई है, वापस आप आइए, और इधर बस से या साइकिल से. पर जैसे जैसे आप बोल रही थी, मैं वैसा विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा था. ये चीजें मेरे को अपने आप विजुलाइज हो रही थी या नहीं, आई डोंट नो, या आपके कहने के बाद हो रही थी, ये आपको जज करना है.
क्योंकि जब आप जो चीज आप बोलते थे मैं वो चीज को विजुलाइज इमीडिएटली कर पा रहा था, उससे पहले नहीं। ठीक है, नंबर 1। फिर आपने बोला कि आप साइकिल से पसंद करेंगे या बस से, तो मैं साइकिल प्रेफर किया मैंने। एंड देन आई विजुलाइज कि मेरे साथ में साइकिल पे आगे जो हैंडल होता है उस पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, कोई 2-3 साल का चार होगा, और पीछे एक जैसे कोई विलेज वुमेन होती है जो बड़ा सा घूंघट निकला होता है, वो पीछे कैरियर पे बैठी हुई है, और मैं उनको दोनों को लेकर के वापस आ रहा हूँ। सो ये करके फिर आपने कहा वापस आ गए हैं आप, वापस जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, वापस आपको वही बेंच पे आ गए हैं। फिर वो सब साइकिल और वो सब गायब हो गया, मैं वापस अपने बेंच पे आ गया। तो ये एक एक्सपीरियंस था। और वो जो हार्ट पे, चेस्ट के सेंटर पे महसूस करना कि क्या मैसेज मिल रहा है, मैसेज मेरे को कोई नहीं मिला। मतलब मैं पकड़ नहीं पाया क्या मैसेज होना चाहिए इस सबको देखने के, लेकिन बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था ये सब कुछ। All right. So which is very wonderful. See, it is not always that you will get your message, और अभी हम उतनी deep meditation में गए भी नहीं, because ये group है, तो group में जो मैं भी देख पा रही हूँ वो काफी mix है, because I actually saw one small boy jumping. So Samkit has written that he was not able to actually connect as in connect, but when you said come back, then I actually saw a boy. So I did see a boy jumping on the road and coming back, you know. And you did carry somebody with you, so that is one point. तो मेरे लिए भी images थोड़ी jumbled और समझ पाना कि कौन सी image कहाँ से float कर रही है is a little bit, but whatever I saw was I did see yellow flowers, sunflower. I could not interpret, but हाँ बहुत ऊंचे ऊंचे yellow color के flowers थे, and it was a field as in field. So I actually repeated कि ध्यान से देखेंगे वो कौन से फूल हैं, कौन से फूल हैं. So that is one part. Then I actually saw, I really do not know who saw a very peculiar animal. You saw goats, but somebody else saw one animal. वो image बन के फिर बिगड़ गई, फिर cow and normal, you know, tamed animals में चली गई. योगेश जी ने water body, quiet water body, because this I felt very strongly that there are people in the group जो पानी में जाना नहीं चाह रहे, they want to just sit and watch water. Okay, yes. Yeah. So there were people in this. So I said both, because I was feeling that somebody would jump definitely, but there will be a person जो यहाँ बैठ के इसको देखने वाला है. So that is also what I felt very clearly, that somebody is watching the clear water, and it's a very very quiet water body. Yeah, that is what I saw. And basically I clearly saw one boy jumping on the road, and it's like जैसे playful होते हैं उस तरह से. Okay. Yeah, I did see. So anybody else has anything more to add, because अलग-अलग interpretations के अलग-अलग meaning होते हैं. You saw, and if I may ask all of you all, जिन्होंने लिखा भी है, जो भी सोच रहे हैं, and कई बार होता है कि हम ज़्यादा interpret नहीं कर पाते. तो basically throughout the session, जैसे-जैसे मैं आपको लेके जाती हूँ, बेसिकली आप कुछ नहीं, आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में एक नोन इमेज को डेवलप करेंगे जो आप पहले देख चुके हैं, और हमेशा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही डेवलप करते हैं इमेजेस, या ड्रीम करते हैं जो हमने पहले कभी देखा होता है. तो या तो हम बहुत पीछे चाइल्डहुड में चले जाएंगे, या उससे पीछे मेमोरी में पास्ट लाइफ की मेमोरी फेच करेंगे, या अपने इसी जीवन के दौरान जो हमने एक्सपीरियंसेस गैदर किए हो, किसी विलेज में जाके देखा हो और जो हमें बहुत पसंद आया हो या ना पसंद आया हो. एक्सट्रीमली नापसंद की चीजें भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी एक्चुअली सी कि ये तो मुझे करना ही नहीं है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, या दिस इज व्हाट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, दिस इज व्हाट ओपन्स. बिकॉज द पॉइंट इज आई वांट टू बैलेंस एंड ओपन योर चक्रस. तो ईच कलर दैट वी सी, इफ समबडी इज सीइंग गोल्डन on the top, अभी मैंने क्राउन की इतनी बात नहीं की क्योंकि हम क्राउन पे उतना गए नहीं, हम आज ज्यादा ग्रीन, ज्यादा येलो वाटर बॉडी, एंड आई सॉ पीपल शिफ्टिंग विथ अ वेरी प्लेफुल काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. तो आज हम इस तरफ ज्यादा रहे. अदरवाइज समटाइम्स वी डू गोइंग टू द क्राउन एंड थ्रोट. सो कलर ब्लू एंड गोल्डन कलर या थर्ड आई का इम्पैक्ट, थर्ड आई इम्पैक्ट ज्यादा जनरेट आज नहीं हुआ. People were very subtle and they were visualizing more of green, and the focus right from the time I said center करना
वहां से फोकस हार्ट चक्रा पे रहा है, सबका हार्ट चक्रा पे रहा है। सो इट डिपेंड्स, आपने जिस पे फोकस ज्यादा रहा है, आप अगर ध्यान दें कि आपने गोल क्या बनाया था, जो आपने गोल बनाया होगा आप उसके नियर अबाउट का एक्सपीरियंस कैरी करेंगे। ना पीपल हु विजुअलाइज अबंडेंस और बिजनेस, दे विल से दैट ये कैसे होगा। तो द मोर येलो यू विजुअलाइज, द मोर ग्रीन यू विजुअलाइज, is how you see your goal manifesting. And ये एक सेशन में नहीं होता, you'll have to keep visualizing, because इसके आगे की जो जर्नी है, जब हम चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं फिर हम उस गोल को महसूस करना शुरू करते हैं। सो विजुअलाइजेशन मीन्स जैसे हम अभी महसूस कर रहे हैं हवा कैसी लग रही है, वैसे ही अगर किसी ने बोला 1 लाख रुपए, ओके गुड, सो सडनली आपको 1 लाख रुपए मिले। अब ये बंडल है, इस बंडल पे वो जो नोट है उसके टेक्सचर को महसूस कीजिए। देन आई वुड हैव सेड दिस, बट थैंकफुली नोबडी आस्क्ड मी कि मुझे वो नोट महसूस करना है। तो अदरवाइज एक्सपीरियंस कुछ यूं रहता कि आप उस नोट के ऊपर हाथ रखिए और अब इस टेक्सचर, पेपर के टेक्सचर को महसूस कीजिए कि ये कैसा है, इसका कलर कैसा है, इज इट क्रिस्पी या पुराना नोट है, डल है। तो ऐसा जब टीचर बोलता है तो आप उसके महसूस करने में लग जाते हैं। कहने का मतलब है गोल आप जो भी बनाएं, मैंने बहुत पीसफुल, काम, हार्मोनाइज्ड और blissful experience, एक अच्छा nice experience that you got. You were very calm and comfortable and harmonized, and we could balance the heart chakra and the root, and we could do little bit of solar chakra balancing. That's all. 3 chakra balancing is what we did today, which is very good for a 40-minute a group meditation. But अगर जब आप खुद करें और जब भी बैठें तो आपका गोल क्लियर होना और आप उससे क्या चाहते हैं उसको बिल्कुल आपने यूं ही महसूस करना है। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि इस गोल को, यानी पैसा कमाने से, इस प्रोजेक्ट से मुझे इतना लाख रुपया मिलेगा, उस लाख रुपए को मैं पहले देख रही हूँ, वो सूटकेस में रखा है या मेरे बैंक के लॉकर में रखा है या वो मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो वो जब लाख रुपए की फिगर मेरे बैंक अकाउंट में ठक से आई और वो एसएमएस आया, क्या फीलिंग हुई? वो एसएमएस आ गया, अब क्या लग रहा है? वंडरफुल, आई फील ब्लेस्ड, ओ वाओ ये पैसे तो आ गए, नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद दैट मनी, लेट्स गो शॉपिंग। ओके, सो अकेले जाना है या वाइफ को लेके जाना है? तो ये जो चीज है, थैंकफुली यू ऑल डिड नॉट गो दैट वे, अदरवाइज मैं आप लोगों की शॉपिंग लिस्ट बनवा रही होती। तो बेसिकली ये जो सारे एक्सपीरियंस विजुअलाइजेशन में हम गैदर करते हैं, आप जब अकेले करेंगे तो ये आपका दिमाग है, आपका मन है, दिमाग इज अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, आपका चित्त है, आपका मन है जो आपको वहां ले जाएगा जहां जहां पे आपका गोल फुलफिल होके आपको वापस लेकर आएगा। या अगर आप हार्मनी और हीलिंग बोलते हैं तो उन जगह पे आपका ध्यान जाएगा, सोलर प्लेक्सस, रूट चक्र, सैक्रल, जहां पर सटल मर्म पॉइंट्स हैं, आपके पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज, आपके पुराने कार्मिक इम्पैक्ट्स, इम्प्रिंट्स हैं, वहां सोलर प्लेक्सस आपको लेके जाएगा, बिकॉज दैट इज योर मेमोरी चिप विच इज इन योर स्टमक। तो इसलिए हम पीला और ब्राउन या ऑरेंज कलर, यानी माय पैशन, माय क्रिएटिविटी, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या करने में आनंद आता है, that's my sacral chakra. Yeah, sexuality, how do I feel, how do I want to look, how do you want to project yourself, that's again in sacral chakra. So those deep seated emotions जो कई बार हम दबा के रखते हैं, हम ऐसे नहीं हैं, ऐसा हम सोचते हैं, बट हम जब इस तरह की विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हम कैसे हैं, हम कई बार उन चीजों को डिस्कवर कर पाते हैं, उस एक रेल्म, उस एक जोन को टच कर पाते हैं जो हम एक्चुअली हैं। तो कभी कभी हम अपनी शैडो सेल्फ को भी टच करते हैं, कभी कभी हम उन इमेजेस को देख पाते हैं या कुछ ऐसा होता देख पाते हैं जो हम बिल्कुल नकार दें, बट उसे ध्यान से देखने के लिए हम जब बोलते हैं तो सिर्फ इतना कि उसे देखना है, महसूस करना है, फिर छोड़ देना है, बिकॉज दैट इज यू और अ सटल मेमोरी फ्रॉम द पास्ट, एंड दैट इज ऑल। सेकेंडली, टेक्निक ये है,
that again and again we ground and we feel good, we feel happy. Feeling good and happy is what should be the experience derived. यहाँ पर शायद सबका experience या goal था harmony, feeling good, peaceful, calm experience. तो शायद हम उसे collect करके ला पाए. बाकी जो नहीं बोल रहे, पुरुषोत्तम जी, where did you go today? Did you go somewhere? नहीं मैम, एक्चुअली जैसे ही बेंच पे गया वो उसके बाद नींद आ गई थी। Okay. और उसके बाद फिर जब आपने कहा ना वापसी का, उसके बाद फिर मेरे को लगा अरे कुछ मिस हो गया बीच में फिर से आज। तो ये हुआ था। तो लास्ट टाइम आप आर्म चेयर पे सो गए थे, रॉकिंग चेयर पे सो गए थे, आज आप बेंच पे सो गए क्या? हाँ मैम। और ना मगर जैसे बीच बीच में जो था कि पेड़ देखना है वो सारी चीजें तो हो रही थी कि पेड़ था बड़ा था और वहीं पे छोटा हिरन भी था, ये सारी चीजें थी वहाँ पे। ऐसा होता मैं यानी बहुत ज्यादा रिलैक्स था, वो शायद इस वजह से मिस हो गया बीच का सारा। It's एंड okay. में सिर्फ Sona is not at all a वापसी problem. करी। हाँ, एंड में सिर्फ साइकिल is वापसी not करी। at all a problem. बॉडी की सबसे पहली जो डिमांड है वो उसको कंप्लीट करती है, और जितना आप बोल रहे हैं कि आप देख पा रहे थे, वापस आ पा रहे थे, मेरी आवाज को सुन पा रहे थे, that means it is just a meditative sleep and nothing much more than that. Anybody else who would like to share the experience, I was very disturbed or I slept, it's okay. Sleeping is not a problem in such kind of sessions. Disturbance नहीं होनी चाहिए, ungrounding नहीं होनी चाहिए. If somebody has an experience that my mind has become very active, okay, तो वहां पे प्रॉब्लम है, या मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, वहां पे प्रॉब्लम है. That person can separately talk to me. हाँ जी सपना मैम, जब हम सो गए तो मैंने नहीं सुना आपने आप कब विलेज में ले गए और कब वो सब, उतना तो मैंने वो सब तो मिस हो गया. तो फिर वो सब हम कैसे कैसे फील कर पाएंगे, मतलब आगे कैसे कि मतलब तो आपने लास्ट टाइम कराया तभी मैं सो गई थी, अब कराया मैं अभी भी सो गई. सपना, honestly, right now what you need probably is to repair your body and your जो आपकी हलचल है दिमाग में उसको कंट्रोल करना, यानी उसको शेड ऑफ करना, दैट अनवांटेड रेस्टलेसनेस इन द बॉडी, उसकी नीड ज्यादा है. काम एंड कंपोज होने की नीड ज्यादा है. उस बॉडी को रिपेयर होने के लिए उतनी नींद या उतना कंफर्टेबल होना जरूरी है, तो वो ले रही है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. अगर वो विलेज में गई सी, हाउ डू आई टेक यू पीपल, ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान कर रखा है सेशन. So actually I did not plan the session. जब मैं विजुअलाइज कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं किसी की विजुअलाइजेशन में से आ रहा है. लाइक अभी सर ने सेशन छोड़ा है, तो तरुण सर ने सेशन छोड़ा है, तो उनके कहने का मतलब वही था कि जो आप कह रही थी, बट एक्चुअली जो हम बोलते हैं, मेरे ग्रुप में कौन कहाँ जाना चाह रहा है. राइट नाउ व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपने पूरे ग्रुप को इकट्ठा किया, आप सबको एक सर्कल में लिया, ओके, एंड एनर्जी कनेक्ट करवाया. अगर आपने ध्यान दिया हो, एनर्जी कनेक्ट कराने का मतलब होता है अब मैं अपने ग्रुप से कनेक्टेड हूँ, मेरा एक भी ग्रुप का मेंबर इधर उधर नहीं जा पाएगा. आई विल बी एबल टू फाइंड आउट कौन रेस्टलेस हो रहा है, कौन परेशान हो रहा है. इसलिए एक आध रेस्टलेस थे या एक आध के थॉट्स यहाँ वहां जा रहे थे, तो मैंने सेशन के बीच में बोला कोई बात नहीं, अगर कुछ और भी देख पा रहे हो तो वापस मेरी आवाज पे ध्यान लेके आओ. इट्स ओके, बिकॉज you will not become a practiced meditation person right in the very beginning. You will not be able to connect to the sound of the teacher in the very first session. It will come to you gradually. जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए 2 मिनट की बात है. जो लोग फर्स्ट या सेकंड टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट वालों के लिए थोड़ा वक्त लगता है, जैसे सेकंड टाइम यू हैव कम, सो यू वर कनेक्टेड टू माय वॉइस, इसलिए जब मैं लेके गई, you started your journey, drifted off to sleep, but as soon as I came, now come back, you've come back, all right. तो हम कहीं ना कहीं एक सिर्फ मेडिटेटिव स्लीप में हैं. बॉडी को रिपेयर करने के लिए, रिजुवनेट होने के लिए वो टाइम चाहिए. आपको जो चाहिए आपने वो ले लिया सेशन में से, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. जिसकी बॉडी को जो चाहिए, इफ हेल्थ एंड हार्मनी वाज योर गोल, यू एक्चुअली गॉट इट. ओके, तरुण सर का कहीं गोल कुछ और रहा हो
that we can discuss with him separately. He's already got it. Somebody was dipping down the childhood memories, वो अपने साथ childhood memory लेके वापस आए, which is perfect. और ये अगर हम gradually experience करें तो कभी कभी हम regression में automatically touch कर लेते हैं वो chord जहां से पुरानी memories वापस आती हैं. Good, bad, whatever. But the teacher's attempt is to keep it as simple, as comfortable, and as pleasant as possible. All right? And so far, so good. Everybody was beautifully connected. Thoda idhar udhar in the first session is acceptable. I hope all of you all had a very calm, comfortable experience. If anybody is ungrounded, having a dizzy head or anything, please do call me or WhatsApp me. I'll separately give you a small, quick 2-minute grounding session and it'll go away. Otherwise, baki ke sab, as soon as you get up, move to your work, you'll settle down with the energy. All right? So, किसी का कोई शक, शुबा, सवाल हो तो पूछ सकते हैं. Otherwise, we sign out of the session till we meet again. Any questions? No, ma'am. No questions to answer. All right then. Thank you so much for being connected. It was nice connecting with all of you all. Thank you. Thanks, ma'am. Thank you. Thank you. Rasika, you want to say something? Okay. Okay then. Thank you so much. Anybody needs grounding can stay put. Rest, I will request all of you to sign out of the session. All right, Rasika, thank you. Anybody who needs grounding can stay. All right. मैम हाँ जी, सपना. जब जैसे आप जर्नी से जब हम वापस आए, आपने बोला कि कोई बच्चा दिखा या मतलब फील कर रहे हो, तो माय डॉटर इज स्लीपिंग विद That child, not that. Somebody was coming back and there was a child with that person. Okay? तो वो बच्चा मुझे उनके साथ दिखा, तो शायद तरुण जी दिखे मुझे या somebody I saw jumping out of the system. I mean, sorry, वो दूसरा काम कर रहे थे, ध्यान उधर चला गया. So I saw somebody being accompanied by a boy. Okay? जब वो वापस आ रहे हैं तो शायद उनके साथ में एक लड़का भी है, छोटा लड़का. तो इसलिए मैंने पूछा कि किसी के साथ में चेक कर लो, आप किसी को साथ ला रहे हो क्या? बिकॉज मैंने भेजा तो अकेला था, तो लेके तो वापस अकेले ही आऊंगी, बट चेक कर लो आपके साथ में कोई वापस आ रहा है. तो बेसिकली दैट्स जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग यू, अपने आसपास देखो कौन वापस आ रहा है साथ में. तो नॉट दैट कि आपकी बेटी सो रही है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. शी इज परफेक्टली ऑल राइट, काम, कंफर्टेबल. You also dozed off because second time this has happened. Again, I will say you need to settle down, be restful, and be more harmonized. Okay? कभी-कभी हम जब बहुत ज्यादा disturbed होते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग चल रहा होता है, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से जैसे ही एनर्जी कनेक्ट होते हो तो बॉडी सबसे पहले वो चीज लेगी जिसको सबसे ज्यादा चाहिए, और आपको सबसे ज्यादा चाहिए था, आपने ले लिया, नो प्रॉब्लम. ओके. हाँ जी, यस प्लीज. पुरुषोत्तम जी. जी मैम एक खैर ये तो सेकंड ही सेशन था मेरे लिए, तो इस सेशन में मैम पहले अब की बार ऐसा हुआ कि आंसू आ गए थे, पता नहीं क्या जैसे मैं उठाऊं तो मैं कहा ये क्या हो रहा है. आंसू आना, दैट्स जस्ट टीयरिंग ऑफ द आई. अनलेस आपने कुछ ऐसा डीप देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, तब तक, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ. हाँ, तो बेसिकली एंड यू आर नॉट इवन ड्रीमिंग, अदरवाइज आई वुड हैव कॉट इट. आपका जो टीयरिंग जो आईज में आता है, टीयर, और इसको बोलते हैं वाटरिंग ऑफ द आईज, तो ये डीप मेडिटेशन में होता है. तो you were actually somewhere in trance. You say that you are sleeping, but I would call it meditative sleep. Yeah, and बहुत ज्यादा सो जाते तो मुझे खराटों की आवाज, अरे आपको पता चल जाती, मेरा माइक तो बंद था, तो वो वापस फिर मैं नहीं ला पाती आपको. But 3, 2, 1 and you're back with me, aware. So you're connected with me. So do not bother about ये watery होना, कोई बात नहीं. आंखें सिस्टम पे ज्यादा गड़ा के बैठते हैं, लैपटॉप पे ज्यादा गड़ा के बैठते हैं सिस्टम पे, तो बॉडी में जो रिपेयर चाहिए होगा, इस सेशन का मतलब ही है रिपेयरिंग ऑफ द सिस्टम.
जिस चक्र में ब्लॉकेज है वहां हिट जाएगी, वो हम विजुअलाइज करेंगे। जो सेंटिमेंट ऊपर लेके आना है वो हम विजुअलाइज करेंगे और टीचर आपको वहीं ले जाएगा। जी। और मैम मैं पीले फूल तो देख ही नहीं पाया, पीले फूल तो देख ही नहीं पाया मैं तो वही ग्रीनरी ही देखता रह गया। फूल दिखाएंगे, फिर चक्रा बैलेंसिंग सेशन जब करेंगे ना तो वी विल सी अ लॉट ऑफ फ्लावर्स। जी ओके जी मैम। ओके सो ओके फाइन। रसिका, एनी क्वेश्चंस? यू नीड एनी ग्राउंडिंग? यू फाइन? यू फीलिंग फाइन? सर में कोई डिजीनेस तो नहीं? Okay, Purushottam ji, you can drop off the session. Okay, Sapna, you can drop off the session. Puneet, you can drop off the session unless if there is a question you want to ask. Okay, so Kiran, you want to ask any question or you need any grounding? I see Kiran on the screen. I hope you don't need any grounding and everything is okay. All right then. So next session, let's see with a chakra balancing session. And till we meet again, I'm signing out. Thank you. Namaskar.